तेलंगाना असेंबली का इजलास 15 मार्च से मुनक्किद होने जा रहा है। हुकूमत ने असेंबली के बजट सेशन की तैयारियों का आगाज कर दिया है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी असेंबली की तैयारियों का जायजा लिया। हुकूमत ग्रेजुएट हल्कों की रायदही के दूसरे दिन बजट इजलास मुनक्किद कर रही है। 15 मार्च को 11 बजे गवर्नर के खुतबे से बजट इजलास का आगाज होगा। 16 मार्च को आंजहानी लीडरों को ताज़ियत की करारदाद पेश की जाएगी। मार्च 17 को गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर मुबाहिस होगी। मार्च 18 को 11:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। बिजनेस करने की ख्वाहिशमंद खवातीन की मदद के लिए और उन्हें माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत ने पहल की है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के इश्तराक से तेलंगाना हुकूमत ने यह कदम उठाया है। इस प्रोग्राम में इंडिया में मौजूद ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर बैरी ओ फेरल, जनूबी हिंद के ऑस्ट्रेलियन काउंसिल जनरल CEO विहब दीप्ति रावला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयेश रंजन और दीगर मौजूद थे। I do hope and I do believe very strongly, not only in supporting the women entrepreneurs here, but like we discussed before, about 10 minutes ago. Another potential opportunity I also believe could be good for the two nations is that we could have some of our women entrepreneurs explore the Australian market and vice versa. We could have the Australian startups also come into India through VHub, and we could see how they could explore the Indian market. So not only in India, if you ask me, the young women who are here, who've been working on brilliant ideas, you should also expand your horizons. It's not just about one market in India. We should potentially look at, since you have Australian government as a partner, you should also look at opportunities in Australia and how we could potentially tap into them. And I'm sure Australian High Commissioner and the Consul General would be happy to welcome you to Australia to explore more, and vice versa. Of course, it's a two-way street. It can't be a one-way kind of a thing. So we would be more than happy to facilitate, through T-Hub, through B-Hub, for Australian, startups to come into India. And with this program Upsurge, I think a lot of young women would benefit. तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सुबह नामपली पब्लिक गार्डन का दौरा किया। उन्होंने बाग़े आमा में चहलकदमी करने वालों से मुलाकात की और ग्रेजुएट MLC इलेक्शन के लिए TRS के खातून उम्मीदवार वानी देवी के हक में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की है। वानी देवी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव की दुख्तर है। మా ఆనబుల్ సీఎం గారు రైతు బంధు రైతు బీమా ఇస్తున్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్స్ కట్టేసిన ఈ హైదరాబాద్ బి చాలా క్లీన్ అయినా, ఇప్పుడు చాలా డెవలప్ అవుతుంది. ఎవ్రీ సెక్టర్లో అంటే ఆల్ సెక్టర్లో పని అవుతుంది. ఎంప్లాయీస్లో అంటే చాలామంది ఇది చెప్తున్నారు, ఎంప్లాయ్మెంట్ తక్కువ ఇచ్చిన అంటే 1,33,000 ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. నా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో నాకు ఆనబుల్ సీఎం గారు మినిస్టర్ ఇచ్చారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత వితిన్ 6 yearsలో ఫస్ట్ అంటే 10,000కు అపాయింట్ చేశారు, నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. తర్వాత 17,000, ఇప్పుడు 20,000లో అపాయింట్మెంట్కు జియో జారీ చేశారు. 47,000 అంటే ఒకటి డిపార్ట్మెంట్లో, ఇంకొకటి అంటే 33% లేడీస్ కోటా ఇచ్చారు. లేడీస్ కోటా అంటే మా ఆనబుల్ సింగ్ గారు చాలా డెవలప్ చేసినానికి అవకాశం ట్రై చేస్తున్నారు. ఈ భాగంలో చాలా మందితో కలిసిన, మా ఆల్ లీడర్స్ కలిసిన అందరూ చాలా వెల్కమ్ చేస్తున్నారు. सिद्दीपेट में महाशिवरात्रि के मौके पर खसूसी प्रोग्राम एहतमाम किया जा रहा है। जुमेरात को होने वाली शिवरात्रि के लिए सिद्दीपेट गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में 4 धाम यात्रा का माहौल बनाया गया है। इस मौके पर मजहबी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। मुंतजमीन ने बताया कि इस मौके पर कोविड गाइडलाइंस पर अमल किया जाएगा। तेलंगाना जागृति की सदर और MLC कविता की यौम पैदाइश को बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान किया गया है। तंजीम के लीडरों ने इस मौके पर फलाही प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया है। रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया जाएगा। जिला निर्मल के भैंसा में तशद्दुद के बाद अमन बरकरार है। आम जिंदगी मफलूज हो गई है। कर्फ्यू जैसा माहौल है। अवाम को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। जरूरी अशिया की खरीदी के लिए भी मुश्किलात पेश आ रही हैं।
पुलिस मुतहरिक है। अहदेदारान शहर में गश्त करते हुए हालात पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। उन्होंने अवाम से किसी भी तरह खौफजदा नहीं होने की अपील की है। शहर के हालात मुकम्मल काबू में हैं। जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारियों का अमल जारी है। पुलिस ने इस मामले में 14 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 काउंसलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। मजीद गिरफ्तारियों के लिए 6 टीमों को तश्कील दिया गया है। అహింసాపట్నంలో మార్చి 7వ తారీఖు జరిగిన ఇరు వర్గాల అల్లర్లలో ఇప్పటి వరకు 15 కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఇందులో సీసీటీవీ ఫుటేజ్, మొబైల్ ఫోటోస్ అండ్ వీడియోస్, సాక్ష్యాల ఆధారంగా 14 మందిని అరెస్టు చేసి కోర్టుకి పంపడం జరిగింది. ఇందులో 2 సిట్టింగ్ కౌన్సిలర్స్, వివిధ పార్టీకి చెందిన 2 సిట్టింగ్ కౌన్సిలర్స్ను కూడా అరెస్టు చేసి కోర్టుకి పంపడం జరిగింది. అదే మాదిరిగా సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వదంతులను, పుకార్లను ఎవరు కూడా నమ్మద్దు. అలాంటి మెసేజ్ దృష్టికి వస్తే అడ్మిన్ పై, అదేవిధంగా పంపించిన వారిపై చట్టపరమైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మహింసపట్టణంలో శాంతి భద్రతలు అదుపులో ఉన్నాయి. जिला कामारेड्डी में इंसानियत सोज वाकया पेश आया है। एक बेटे ने अपने बाप को बेरहमी से कत्ल कर दिया और एक दरख्त से फांसी पर लटका दिया। बताया जा रहा है कि बाप ने फसल लोन लिया था। बेटा फसल लोन की रकम तलब कर रहा था। रकम नहीं देने पर उसके बेटे भास्कर ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। भास्कर अपने वालिद को बाइक पर घर से दूर ले गया और पीट पीट कर कत्ल कर दिया और साथ ही उसकी लाश को दरख्त से लटका दिया ताकि अवाम और घर वालों को गुमराह किया जा सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुलजिम को गिरफ्तार करके जांच जारी है। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके रेन बाजार में गुज़िश्ता रात देर गए एक राउडी शीटर के कत्ल की वारदात पेश आई है। बताया जाता है कि मोहम्मद परवेज उर्फ फरूडॉन का रेन बाजार छोटा पुल इलाके में बाज नामालूम अफराद ने तेज हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इंस्पेक्टर रेन बाजार पुलिस स्टेशन पी अंजनेलू और क्लोज टीम मौके पर पहुंचकर लाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हमलावरों की तलाश जारी है। हैदराबाद की तारीखी इमारत मौज़म जाही मार्केट में म्यूजिकल प्रोग्राम गुलदस्ता मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम हुकूमत तेलंगाना, GHMC और सुर मंडल ने किया। अहम फनकारों ने अपने फन से हाजरीन को मुतासिर किया। गली से घर के मके हम थे सजे, गली से घर के मके हम थे सजे, गली से घर के मके हम थे सजे। आज मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे हिस्टोरिकल जगह में मौज़म जाही मार्केट जहां हम ये प्रोग्राम कर सके, ये सब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और यहाँ के GHMC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये लोगों के शायद से ये सब हुआ है। सुर मंडल जो नाम है ये उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब ने हमको दिया था। आपको शायद मालूम होगा, बड़े गुलाम अली साहब पाकिस्तान छोड़ के हैदराबाद आके सेटल हुए और वो हमारे घर आके हमको ब्लेस करके ये हमको नाम दिया और 50 साल के ऊपर हो गए हम ये चला रहे हैं। हमने उसका नाम गुलदस्ता रखा और
पहले स्टार्ट किया एक छोटी बच्ची जो कर्नाटक की है, वो बहुत अच्छा क्लासिकल गाई। उसके बाद सरोद का प्रोग्राम हुआ, वो कलकत्ते से आए, और लास्ट में पूर्वा गुरु जो है हैदराबाद की है। तो ऐसे मिला के हमने ये प्रोग्राम किया। बहुत अच्छा लगा। एक तो एम्बियंस बहुत खूबसूरत थे, और मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि इस मार्केट एरिया में इतनी खूबसूरत जगह है, और बहुत अच्छे सुनने वाले, जिनको देखकर मन करता है कि आप अच्छे शौरा को सुनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं मोहन हिमाड़ी जी का स्पेशली थैंक्स करूंगी, सुर मंडल का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी अच्छी ऑडियंस दी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।